کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں سب کو اس دنیا سے جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ کلمہ پڑھتے رہیں۔ تو ابھی باتیں شاتیں تو کافی زیادہ میں کر رہا ہوں، تو درود شریف پڑھتے ہیں مل کے سارے، ولاگ جاری ہے میرا ساتھ ساتھ، تو درود شریف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بس میں نے آج کی ولاگ اس لیے شوٹ کیا کہ آپ لوگوں کو اپنے ایریا کا جو ہے وہ قبرستان اور انتظامیہ اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں دکھاؤں، تاکہ ہمارے دل میں موت کا خوف جو ہے وہ ہر ٹائم طاری رہے۔ سننے میں آتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں اور کافی جگہ میں نے پڑھا بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری قبر جو ہے ہمیں دن میں 70 دفعہ یاد کرتی ہے۔ کیا ہم موت کو ایک دفعہ یاد کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کے ولاگ کو کر لیتے ہیں سٹارٹ۔ عزیز دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی زندگی سے نوازا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جتنے لوگ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، جتنے ویورز میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو صحت والی زندگی سے نوازا ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اور ہم سب کے لیے دعا کیجئے گا۔ اچھا جی، ولاگ کو پراپرلی سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیچھے والا ولاگ میں نے آپ لوگوں کو جنازگاہ دکھایا تھا، اور دونوں جنازگاہ دکھائے تھے ہمارے کبوترا والے قبرستان گوجرا شہر کے۔ ایک بڑے والا جنازگاہ تھا، ایک جس میں عام روٹین میں جنازہ جو آتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ ابھی میں وہیں پہ موجود ہوں، اور اگلا ولاگ جو ہے وہ میں نے یہیں سے سٹارٹ کیا ہے۔ آج کے ولاگ میں 15 سے 20 منٹ میں یا میکسیمم 25 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو میں قبرستان دکھاؤں اپنا گوجرا شہر کا۔ قبرستان بہت بڑا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ رہنے والے چند پرند کو، انسان کو، ہر جانور کو موت کا مزہ جو ہے وہ لازمی چکھنا ہے۔ روح اللہ پاک نے ہمارے جسم میں ڈالی ہوئی ہے جی، ایک دن اس روح نے ہمیں چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور ہمیں من و من مٹی کے نیچے جو ہے وہ دفنا دیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی تیاری بہتر سے بہتر کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آگے چل کے بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ۔ ابھی میں موجود ہوں، جب ہم فوت ہو جائیں گے یا جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا جنازہ جو ہے وہ یہاں پر لا کے رکھا جاتا ہے، اور یہاں پر صفیں پراپرلی جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، اور لوگ نماز جنازہ ادا کر کے آخری رسومات پوری کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کے جانا ہے، تیاری کرنی چاہیے۔ تو ابھی جو ہے ولاگ پراپرلی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ سے میں نے روٹین بنائی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور کوشش کروں گا کہ ہمیشہ جب بھی اپنی زندگی میں ولاگ کرتا رہوں، ساتھ ساتھ اس روٹین کو کنٹینیو کروں، اور بلکہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ جتنی میری مائیں، بہنیں، بچے، میرے انکل آنٹیاں، پھپھے پھپھیاں، تائیاں جتنے لوگ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، سب مل کے پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اچھا جی، ولاگ میں نے آپ لوگوں کو تھمبنیل اور ٹائٹل سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کے ولاگ میں نے آپ لوگوں کو کبوتروں والا قبرستان جو ہے وہ مکمل دکھانا ہے۔ دکھا نہیں میں پاؤں گا، بہت بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پر قبریں موجود ہیں، اور ایک بہت ہی بڑے ایریا میں قبرستان موجود ہے، لیکن درخت بہت زیادہ ہیں، تو کوشش کرتے ہیں جتنا کور ہو سکا انشاءاللہ میں کروں گا۔ تو سب سے پہلے قبرستان انٹر ہونے کی دعا ادھر اوپر مینشن ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ آپ لوگ بھی جب قبرستان آیا کریں تو دعا جو ہے وہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ قبرستان ہمارا ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے، ویسے تو قبرستان کے کافی زیادہ دروازے ہیں، لیکن یہ ایک مین ڈور کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ادھر جنازگاہ بھی ہے، اور ساتھ میں یہ ڈور جو ہے وہ قبرستان کی طرف آتا ہے۔ تو بھائی صاحب، یہاں پر آپ کو قبریں ہی قبریں نظر آئیں گی۔ یہی ہماری حقیقت ہے، یہی ہماری کہانی کا اختتام ہونے والا ہے، اور درخت جو ہے نا ایک کافی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ راستے دو ہیں، ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے۔ اس طرف کو چلتے ہیں، اور باتیں شاتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاری رہیں گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں قبرستان بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ قبرستان کتنا بڑا ہے۔
कुछ लोगों ने पक्की कब्रें बनाई हुई हैं, कुछ लोगों ने कच्ची कब्रें बनाई हुई हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। कुछ लोगों ने बिल्कुल मट्टी की कब्रें बनाई हुई हैं। जन्नतुल बकी जब मेरे अब्बू जान और अम्मी जान हज पे गए ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पर जो है ना जन्नतुल बकी में वो कच्ची कब्रें हैं, सिर्फ निशान ही बाकी हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ लोग पक्की बना लेते हैं, जैसा कि ये एक कब्र है, सॉरी ये वाली कब्र, इसमें दरबार आलिया बनाया गया है, ये मज़ार टाइप बनाया गया है, ईंटें वगैरह लगाई गई हैं, ये वाली कब्रें। अब ये कब्र कच्ची है, ये वाली इसके साथ पक्की कब्र है। लेकिन दरख्त चेक करें भाई साहब, है ना दरख्त बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ना गर्मियों में भी छाँव होती है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, किसी जगह पे थोड़े कम हैं, लेकिन कम भी इतने नहीं हैं बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। और अभी मैं एंटर हुआ हूँ, तो ये अगर मैं पूरे कब्रिस्तान का राउंड लगाता हूँ तो कम अज़ कम मुझे जो टाइम रिक्वायर्ड है ना, वो 1 घंटा 40 मिनट रिक्वायर्ड है कि मैं पूरे कब्रिस्तान का एक राउंड लगाऊंगा। तो एक दिन भाई साहब हमने भी चले जाना, ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ बताया है कि कब्रिस्तान हमने जाना है, रहना नहीं है। बाकी सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात रहेगी। ये दुनिया जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क़यामत आएगी, क़यामत के बाद मैदान हशर होगा, हिसाब किताब लिया जाएगा, फिर अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं जो अल्लाह पाक बेहतर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे बड़े जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं, ख़ास तौर पे मेरे अब्बू जान, मेरे दादा अब्बू, दादी अम्मा, नाना अब्बू, नानी अम्मा, और इस कब्रिस्तान में बल्कि इस पूरी दुनिया में जितने मुसलमान लोग जो हैं वो फोत हो गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, कब्र की तमाम मंजिलों में आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ। दुनिया के बाद ना, हमारी ज़िंदगी के बाद जो पहला हमारा इम्तिहान है ना, वो कब्र है, ज़मीन का घड़ा है, जिसमें हमारा हिसाब लिया जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा मन रब्बू का, मन दीनू का, मन नबीजू का। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इतनी तैयारी कर लें, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ाकार पे अमल करते रहे, ताकि हम अल्लाह ताला के फ़रिश्तों को जाके उनके सवालों का जवाब दे सकें। तो ये कब्रिस्तान यहाँ पर जो है ये एक बहुत पुरानी दीवार सी बनी हुई है और इसके अंदर कब्रें मौजूद हैं, और इस तरफ भी जो है वो बड़ी तादाद में कब्रें मौजूद हैं। दरख्त चेक करें, मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त आप लोगों को नज़र आएंगे यहाँ पर। लकड़ी जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की है, लाइक दैट यहाँ पे शहतूत वगैरह हैं, जामन हैं, इसके अलावा जो है वो टालियाँ वगैरह हैं, निमे वगैरह हैं। तो ये इधर जो है ना बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। व्लॉग का एंड जो है ना वो मैंने अब्बू जान के पास जाके करना है, तो साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, व्लॉग को मुकम्मल देख लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहर के साथ साथ भी जाते हैं, नहर के साथ साथ भी बिल्कुल कब्रिस्तान मौजूद है, वहाँ भी पहुँचते हैं, वो एरिया भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और एक एरिया ऐसा है मेरी नज़र में कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, वहाँ पे कोई कब्र नहीं हुआ करती थी, किसी किस्म की कोई कब्र जो है वो नहीं हुआ करती थी। लेकिन देखते देखते भाई साहब वहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में कब्रें बन गई हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो एरिया मैं बाद में दिखाता हूँ, सारी चीज़ें जो हैं वो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ साथ साथ। ये चेक करें, इधर भी दरबार शरीफ एक बना हुआ है, अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है, यहाँ पर कोई रोकथाम नहीं है, कोई बंदा किसी को रोकता नहीं है। यहाँ पर आप जो हैं अपनी कब्र को पक्का भी करवा सकते हैं, उसको कच्ची भी रख सकते हैं। जैसा कि ये वाली कब्रें जो हैं यहाँ पर कच्ची हैं, यहाँ पर जो इन्होंने अपना शेड सा ऊपर बना के फ़ाइबर का वो लगाया हुआ है, और मुख्तलिफ़ दरख्तों पे अल्लाह ताला के नाम, अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जो हैं वो लिखे गए हैं माशाल्लाह। और इंतज़ामिया के लोग इधर काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मोस्टली जो है वो कब्रिस्तान में ही रहते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा फ़ौत हो जाता है, लाइक मिसाल के तौर पे हमारे मोहल्ले में कोई फ़ौतगी हो गई, जैसा कि मेरे अब्बू जान, मैं अब्बू जान की बात कर लेता हूँ, अल्लाह ताला के पास चले गए, अब्बू जान जब फ़ौत हुए तो मैं यहाँ पर आया कब्रिस्तान में। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के साईं मौजूद हैं, उनमें से एक मेरे वाकफ़ भी हैं, बाबा जी सदीक साहब हैं, एक जो हैं वो मंगा, उनको बोलते हैं, आसिफ मंगा उनका नाम है। तो मैं उनके पास आया, मैंने कहा यार इस तरह मेरे अब्बू जान अल्लाह ताला के पास चले गए हैं तो कब्र निकालनी है। तो उन्होंने मतलब वो जगह देख लेते हैं ना, तो उनको बता देते हैं कि हमारी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर मेरी दादा अब्बू और दादी अम्मा की कब्र पहले से मौजूद थी, वहाँ पर जगह मौजूद थी, वो मैं जाके दिखाता हूँ आप सबको जब मैं व्लॉग को मुकम्मल करूँगा। तो वहाँ पर जो है ना वो अब्बू जान की कब्र जो है वो मैंने निकलवा ली। तो उसके चार्जेस होते हैं, वो मैंने पीछे वाले व्लॉग में आप लोगों को दिखाए थे। अपनी इस्तात के मुताबिक स्लेटें लेनी होती हैं, 5 से 6 स्लेटें होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो अभी लाइक मतलब 14-15 हज़ार रुपये जो है वो इंतज़ामिया हमसे कलेक्ट कर लेती है जब वो कब्रें वगैरह जो है वो निकाल के देते हैं। तो इंतज़ामिया ने काफ़ी अच्छा निज़ाम संभाला हुआ है। ये सोलिंग वगैरह जो है इसकी प्रॉपर जो है वो सफाई वगैरह की जाती है। और दरख्त इधर चेक करें, अल अज़ीज़ु, तो इस तरह मुख्तलिफ जो है वो नाम लिखे हुए हैं। अभी नहर की तरफ चलते हैं, वहाँ जाके जो है वो मैं आप दोस्तों को नहर के साथ जो है वो कब्रिस्तान वो भी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम।
अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो ये वाला एरिया जो है ना ये अभी बना है, इसमें दोबारा मैं वापस आऊँगा, ये मैं दोबारा दिखाता हूँ। अच्छा, सोलिंग जो है ना वो हर जगह पे तकरीबन लगी हुई है। यहाँ पर ये बाहर वाला एरिया आ गया, कब्रिस्तान के मिड वाला एरिया आ गया, तो यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से ईंटों की सोलिंग जो है ना वो लगाई गई है। बारिश में अक्सर औकात जनाजा आता है तो लोगों को तंगी नहीं होती। अभी यहाँ पर जो है ये ओपन एरिया है, तो दरख्त इधर पीछे जो है बहुत बड़ी तादाद में है। अभी इधर जो कब्रिस्तान दोबारा बन रहा है ना नया, मतलब यहाँ पे नई कब्रें जो लोग फोत हो रहे हैं अभी 2025 में, उनकी कब्रें आगे की तरफ बन रही हैं, तो यहाँ पर जो है वो दरख्त वगैरह भी साथ साथ जो है इंतज़ामिया लगा रही है। इंतज़ामिया काफ़ी कोऑपरेट करती है, काफ़ी बड़ी तादाद में, लाइक 100 लोग होगा इंतज़ामिया में यहाँ पर, क्योंकि कब्रिस्तान की तादाद जो है कब्रिस्तान की जो जगह है ना वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कब्रें भी हैं। और हमारा शहर जो है ना गोजरा, उसकी आबादी राउंड अबाउट 20 लाख होगी, आई थिंक सो, होनी चाहिए, मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना लोग आते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, गाँव से भी अक्सर जनाजे यहाँ पर आ रहे होते हैं। अब ये ज़मीन है मिसाल के तौर पे, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, और यहाँ पर जो गंदम वगैरह लगी हुई है किसी ने ठेके पे ली होगी, लेकिन जब ये एरिया अभी फ़िल होने वाला बाकी है, ये वाला एरिया अभी ना बाकी है फ़िल होने के लिए, लेकिन यहाँ से जो कब्रें आगे की तरफ आएंगी तो इसको एरिया को ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर इस एरिया को ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर इस एरिया को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह करते करते ना वो एरिया आगे जितना भी है ना वो सारे का सारा कब्रिस्तान में शामिल हो जाएगा। टेंडर की ज़मीन है, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो गवर्नमेंट जो आहिस्ता आहिस्ता इसको देती जा रही है। अभी फ़िलहाल ठेके पे लोग, जो भी इसका मामला चल रहा है मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान सारा कबूतरा वाला कब्रिस्तान बन जाएगा। अभी मैं जिस एरिया में एंटर हो रहा हूँ ना, ये वाला कब्रिस्तान, यहाँ पे मेरे एक चाचू हैं, मेरे दादा अब्बू के छोटे भाई बाबा जी खान साहब हुआ करते थे, राना मोहम्मद खान साहब, तो उनके जो बेटे की कब्र है ना, मेरे चाचू लगते हैं वो रिश्ते में, तो उनकी कब्र यहाँ पर मौजूद है। और तब जब उनको दफनाया था ना तो भाई साहब यहाँ पर भी कब्रें नहीं हुआ करती थी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये इबरत का मंज़र है, मैं आप लोगों को दिखा तो रहा हूँ व्लॉग में, लेकिन ये इबरतनाक मंज़र हैं। कभी हमारी कब्र भी यहाँ पर होगी, कोई आएगा नहीं आएगा, नो आइडिया। तो अगर हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, अपने वालिदैन की कदर करेंगे, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने वालिदैन का अदब करेंगे, अपने वालिदैन, सारी बातें एक जैसी हो रही हैं, अपने वालिदैन की हर बात मानेंगे ना, अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे ना, तो हमारे बच्चे भी हमारी खिदमत करेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, किताबों में लिखा गया है ना, ये अहम ही नहीं लिखा गया, इसमें बड़ी लॉजिक्स हैं, बड़ी चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें वक्त के साथ साथ समझ आती हैं। अभी जब हमारे बच्चे हैं तो वो हमारा अदब करें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे फर्मा बरदार हों, हमारा अदब करें, हमारे कहा माने, हमारी रिस्पेक्ट करें। तो यकीनन अगर आप लोगों ने, मैंने, आपने, या हम जैसे कई भाइयों ने, बहनों ने अपने माँ बाप का अदब किया है, उनकी इस्तात की है, उनकी फर्मा बरदारी की है, तो हमारे बच्चे भी हमारे फर्मा बरदार होंगे। अगर नहीं है ऐसा तो फिर हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो सबसे जो बेस स्टार्ट होती है ना हमारी ज़िंदगी की, वो माँ बाप का अदब है। मेरे अबू जान नहीं है, वो इसी कब्रिस्तान में है, हमने भी इसी कब्रिस्तान में आना है, तो यहाँ पर भाई साहब हमें आना है। सिंपल सी बात है कि हमें तैयारी करनी चाहिए। अभी यहाँ पर चेक करें, ये दरख्त जो है ये नया कब्रिस्तान बना है, मतलब नया कि यहाँ पर कब्रें अभी बनी हैं, तो यहाँ पर जो है ना ये दरख्त चेक करें, बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पर भी कब्रें बन चुकी हैं, और ऐसे 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 करके लोग फोत होते हैं, पता भी नहीं चलता। तो जब हम फोत हों ना, बातें हो रही हैं आप लोगों के साथ, आप मेरी फैमिली मेंबर हैं, इतने से मेरे सब्सक्राइबर हैं, इसको बढ़ाएं, जितना हो सकता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपनी लाइफ के हवाले से डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉग्स, जब इस्लामाबाद चला जाता हूँ तो इस्लामाबाद के व्लॉग्स बनाता हूँ, पंजाब में हूँ तो पंजाब के व्लॉग्स आ रहे हैं, गांव में चला जाता हूँ तो गांव के व्लॉग्स आते हैं। अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन लाइफ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएँ, और दोस्तों के साथ मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक को जो है वो लाजमी शेयर किया करें, ताकि आपका भाई, आपका दोस्त जब एक नया व्लॉग अपलोड करे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरे व्लॉग को देख सकें। अभी मैं नहर की तरफ जाता हूँ, ये सोलंग इधर लगी हुई है, नहर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल साथ साथ हमारी एक नहर बनी हुई है, नहरी निज़ाम भी हमारा पाकिस्तान का ना माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है। हमारी जो इधर ज़मीन है, पीछे से पीछे वाले व्लॉग्स में मैंने आप लोगों को ज़मीन का एक विज़िट राउंड लगवाया था, इशू भी डिस्कस किया था, आप लोगों ने काफ़ी सारी दुआ दी है अपने भाई को। अल्लाह ताला मेरे मुस्लिम साहिल जो हैं उनको हल फरमाएँ, आमीन सुम आमीन। तो वहाँ पर नहर, इसी नहर से जो है वो पानी लगाया जाता है। तो नहर पे पहुँच के इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। प्यास लग गई थी मुझे, थोड़ा सा मैंने पानी पिया है। नलके बहुत ज़्यादा तादाद में लगे हुए हैं, नलकों की बात नहीं हुई। अभी जाते जाते मैं आप लोगों को जो है वो नलके वगैरह वो दिखाता हूँ। इधर बिल्कुल साथ जो है ना ये हमारा बाईपास है,
टोबा से, समुंदरी से या फैसलाबाद से हम लोग गोजरा में आते हैं ना, तो ये साथ साथ बाईपास है। और ये इधर बड़ी ही प्यारी एक छोटी सी पुख्ता किस्म की जो है वो नहर बनी हुई है। पानी अभी इसमें कम है, मुझे लगता है कि पानी अभी चेक करें ये आ रहा है, ये पत्ता आगे की तरफ जा रहा है ना, ये वाला। तो पानी अभी नहर में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भरना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, मुझे प्यास लग गई थी, मैंने पहले बताया, पानी पिया मैंने। यहाँ पर नलके बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, मतलब कि हर 100 मीटर के डिस्टेंस पे या 50 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर जो है ना पानी के लिए नलकों का इंतज़ाम किया गया है। ये भी एक इंतज़ामिया की अच्छी काबिश है। मेरा दिल किया मैंने नलका लगवा दिया, आपका दिल किया आपने लगवा दिया। इस तरह लोग जो है ना वो नलके लगाते हैं। अब ये नलका इधर लगा हुआ है, तो इसी तरह डिफरेंट जगहों पर ना काफ़ी ज़्यादा तादाद में नलके जो हैं ना वो लगे हुए हैं। अभी अंदर चलते हैं और एक एरिया मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसमें हमारे हमसाए हुआ करते थे भाई एजाज साहब और उनकी बेगम। तो वो रहा करते थे हमारे साथ वाले घर में। अचानक से वो फौत हो गए, पता भी नहीं चला। मेरा ख्याल कोई मसला बन गया था, बीमारी थी कुछ इस तरह का, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो इस दुनिया से चले गए, तो पता भी नहीं चला भाई साहब। ज़िंदगी एक पल में, एक मिनट में ख़त्म हो जाती है और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो इधर ये बड़ा अच्छा एक व्यू सा है, मैंने कहा चलें आप दोस्तों के साथ इधर जाके जो है वो शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर एक सोसाइटी है इधर साथ ही, और साथ में इधर नहर है और इधर जो है वो कब्रिस्तान है। तो इस तरह यहाँ पर ना दरख्त भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर ना मतलब काफ़ी लोग आगे वैसे बैठ भी जाते हैं, अपना इधर बैठ के अपनी बातें शातें भी करते रहते हैं। अभी चलते हैं अंदर की तरफ दोबारा, और अभी मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा वो एरिए में जहाँ पर कब्रिस्तान अभी नया नया बना है, मेरे देखते देखते बना है, 2 साल में बना है ये कह सकते हैं आप, ठीक है। और वहाँ पर 2 साल में इतनी ज़्यादा कब्रें हो गई हैं ना, मैं बता नहीं सकता। तैयारी करें, तैयारी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हमें सबको इस दुनिया से जाना है, छोड़ के जाना है। कलमा पढ़ते रहें। तो अभी बातें शातें तो काफ़ी ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं मिलके सारे, व्लॉग जारी है मेरा साथ साथ, तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। ये वाला नलका भी इधर मौजूद है। तो इसी तरह 50-50 मीटर के डिस्टेंस पे जो है वो नलके यहाँ पर लगे हुए हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कंटिन्यू करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इस बात के लिए माज़रत, मेरा व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप लोग मुकम्मल व्लॉग जो है वो देख लीजिएगा। इधर इसे वाले एरिया में भी जो है वो दरख्त काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं कि कब्रिस्तान आगे की तरफ, पहले भी मैंने बताया कि आगे की तरफ जिस तरफ को जाएगा ना कब्रिस्तान, वो गवर्नमेंट की जगह है, टेंडर की जगह है। जो लोग समझते हैं इन चीज़ों को उनको ज़्यादा आइडिया होगा। तो ये टेंडर की जगह है। टेंडर मतलब कि गवर्नमेंट ने किसी को दी होती है, उससे गवर्नमेंट पैसे जो है वो ले लेती है, इस तरह का कोई हिसाब किताब होता है। सूरज भी अभी भाई साहब बहुत ज़्यादा ऊपर है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दरख्तों का बाकायदा यहाँ पर पेंट शेंट किया जाता है ताकि निशानदेही रहे, कोई दरख्त जो है वो उतार ना सके। अच्छा, ये वाला जो एरिया आ रहा है ना आगे, ये वाला, ये जितना भी एरिया है ना, सारी की सारी जितनी भी आगे तक ज़मीन नज़र आ रही है ना आप सबको, ये सारी की सारी जो है ना ये कब्रिस्तान में शामिल होगी, हमारे कब्रिस्तान में। साथ ही जो है इधर ग्राउंड है, और इस ग्राउंड में जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली। अभी मैं वहाँ पहुँच जाऊँ जो नया कब्रिस्तान बना है, वहाँ जाके इंशाल्लाह दोबारा मैं कैमरा ऑन करता हूँ। अभी मैं ना उस जगह पे आ गया हूँ जो मैंने खुद अपनी आँखों से इस कब्रिस्तान को जो है वो बनते हुए देखा है। यहाँ पर एक कब्र भी नहीं हुआ करती थी आज से 2 साल पहले, लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर फुल बटा फुल जो है वो कब्रें बन गई हैं। मैं आपको उधर लेके चलता हूँ, वो एरिया दिखाता हूँ। अभी फैसल भाई ने ज्वाइन किया मुझे। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, की हाल चाल? तबीयत से ठीक है? और सुनाओ, गर्मी आ गई? गर्मी फुल आ गई। इस तरह जो है वो नलके इधर लगे हुए हैं। केड़ी चीज़ लगी है जी? पानी वाली टैंकी। की होंदा? पानी भर दिन्ने तो इस्तेमाल कितना करना? बाल्टी वगैरह पीने वास्ते है। अच्छा, ये एक यूनिक किस्म की टैंकी जो है ना वो इधर मुझे नज़र आई है। यहाँ पर ऊपर जो है ना ढक्कन लगा हुआ है इधर, तो इसमें नलके की मदद से पानी भर दिया जाता है और नीचे से पानी जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और टाइल वर्क इसमें किया गया है ताकि पानी अंदर ठंडा रहे। फसल भाई मैं आया था 1 मिनट।
ابھی جو ہے وہ ادھر اس طرف میں لے کے چلتا ہوں آپ سب کو، وہ قبرستان جو کہ میرے دیکھتے دیکھتے بنا ہے۔ یہ قبرستان جو ہے نا ادھر والا ایریا، یہ تو کافی پرانا ہے، اور یہ قبرستان جو ہے نا بھائی صاحب پاکستان بننے سے پہلے کا قبرستان ہے۔ راستوں کی بات کریں تو قبرستان میں انٹر ہونے کے لیے بہت سارے راستے موجود ہیں، ادھر بہت زیادہ راستے ہیں، مطلب کہ ایک تو مین راستہ ہے نا جس سے میں انٹر ہو کے آیا ہوں، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے راستے ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے، راہداریاں بنی ہوئی ہیں، آپ کہیں سے بھی جو ہے وہ انٹر ہو کے قبرستان میں آ سکتے ہیں۔ اچھا جی، درود شریف پڑھتے رہیں سارے، اور یہ منظر جو ہے نا یہ دل کو دہلا دینے والا ہے۔ یہ دہلا دینے والا اس لیے میں بول رہا ہوں کہ یہ والا جو بچہ جا رہا ہے نا ادھر، یہ والا بچہ ادھر گزر رہا ہے نا یہ والا، تو یہ والا قبرستان نا جناب یہاں سے لے کے اور یہ والا جو ایریا ہے سارے کا سارا یہ میرے دیکھتے دیکھتے بنا ہے، مطلب کہ یہاں پر کوئی قبر نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرح باتیں کرتے کرتے ابو جان کے پاس چلتے ہیں اور اپنے ولاگ کو کریں گے مکمل۔ ابو جان کے پاس پہنچ کے، اور ولاگ میرا کافی لینتھی ہو گیا ہے، اور بس میں نے آج ولاگ اس لیے شوٹ کیا کہ آپ لوگوں کو اپنے ایریا کا جو ہے وہ قبرستان اور انتظامیہ اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں دکھاؤں، تاکہ ہمارے دل میں موت کا خوف جو ہے وہ ہر ٹائم طاری رہے۔ سننے میں آتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں، اور کافی جگہ میں نے پڑھا بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری قبر جو ہے ہمیں دن میں 70 دفعہ یاد کرتی ہے۔ کیا ہم موت کو ایک دفعہ یاد کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ فیصل بھائی آ جاؤ، 5 وقت کی نماز جو ہے نا وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ فیصل بھائی اچانک سے آگے ہیں تو وہ بھی ولاگ میں آگے۔ تو یہ والا قبرستان جو ہے نا یہ بھی ایک راستہ ہے، یہ سولنگ باقاعدہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے، یہ بھی راستہ جو ہے وہ باہر کی طرف جاتا ہے، یہاں سے بھی ہم لوگ انٹر ہو کے آ جاتے ہیں۔ اور جتنا میں نے وزٹ کروایا نا سب درختوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور مختلف جو ہے اللہ پاک کے نام اور کلام جو ہیں اللہ پاک کے بڑے نام سارے ماشاءاللہ وہ لکھے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ والا جو راستہ ہے نا یہ اس طرح قبروں کے درمیان میں سے راستے چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں، تو یہ والا جو راستہ ہے نا یہاں سے گزر کے پیچھے سے بھی میں آ سکتا تھا، لیکن پیچھے سے جو ہے وہ ابو جان کے پاس میں آ جایا کرتا ہوں، ادھر بھی دروازہ بنا ہوا ہے لیکن میں ادھر سے آ رہا تھا، تو ابھی ابو جان کے پاس چلتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور اپنے ولاگ کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ نلکا بھائی صاحب ادھر کسی نے ریپیئر کروا دیا، نلکے کو اونچا کر دیا اور ساتھ میں جو ہے ادھر ہودی سی بنا دیا۔ پہلے یہ نلکا جو ہے نا یہ ڈاؤن ہو گیا ہوا تھا کافی زیادہ۔ تو یہ راستہ جی یہ میرے دادا ابو جان کی قبر ہے۔ عید والے دن جب میں نے ولاگ شوٹ کیا تھا تو صفائی وغیرہ کی تھی ساری اور دعا مانگی تھی، اور ساتھ میں جو ہے یہ ادھر میری دادی اماں کی قبر ہے، اور بالکل ساتھ یہاں پر جو ہے وہ میرے ابو جان کی قبر ہے۔ تھوڑی سی صفائی بھی کرتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا مانگ کے میں دوبارہ ملتا ہوں انشاءاللہ۔ فیصل بھائی بھی ادھر آ رہے ہیں تو دونوں بھائی مل کے دعا مانگیں گے اور پھر دوبارہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ملوں گا۔ یہاں سے قبرستان دیکھیں اور ادھر بالکل ساتھ جو ہے نا یہ والا جنازگاہ ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ جی میں دوبارہ آپ سب سے ملتا ہوں، تھوڑی سی صفائی کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، دعا مانگ کے انشاءاللہ دوبارہ میں ملتا ہوں آپ سب سے۔ گوجرے کا سب تو بڑا قبرستان ہے، پاکستان کا بھی سب تو بڑا قبرستان کیا جا سکتا ہے نا؟ پاکستان کا نہیں کیا جا سکتا، لیکن ویسے قبرستان سے درخت بہت زیادہ ہے۔ سارا تقریباً میں دکھایا تو نہیں ہے سارا آپ لوگوں کو، کیونکہ اس کے لیے 1 گھنٹہ بھی کم پڑ جائے گا ولاگ بنانے کے لیے، لیکن جتنا ہو سکا ہے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے۔ کہ قبراں بہت پرانیاں بھی پاکستان بنن تو پہلے کا کہہ سکتے ہیں، پاکستان بننے تو پہلے یہ فیصل بھائی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے کا قبرستان ہے۔ تو خیر جی دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی دوستو، یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ میں نے اس ولاگ میں پورا قبرستان دکھانے کی کوشش کی ہے آپ سب کو۔ کبوترا والا قبرستان گوجرا، یہ نلکا جو ہے نا یہ والا، یہ کسی نے ریپیئر کروا دیا تھا۔ ابو جان کے پاس میں نے دعا مانگ لی ہے اور ادھر ابو جان کے پاس ہی میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میں نے سوچا ولاگ یہیں پہ جو ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ عصر کی اذان سٹارٹ ہو گئی ہے، تو خیر جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے بھائی کو، اپنے والدین کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی اور سانسوں نے وفا کی، تو میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سب سے ایک نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ حافظ جی۔